BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے کا اب تک کوئی حل سامنے نہ آ سکا۔ اس دوران امریکی وزیر خارجہ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی اور فوج کے سربراہ سے ملے اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انڈین فلم پدماوتی مشکلات کا شکار۔ یو پی کی حکومت نے کہا کہ اس کی نمائش سے نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال افغانستان میں افیون کی پیداوار میں 90% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں مستند اور آزادانہ تحقیقات پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی کے علاوہ وہاں کی فوج کے سربراہ سے بھی ملاقات کی۔ گزشتہ کئی ماہ سے لاکھوں روہنگیا مسلمان میانمار کی فوج کے مظالم سے بچنے کے لیے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش جا چکے ہیں، لیکن ہجرت کا یہ خونی سفر سینکڑوں روہنگیا لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ گیبریل گیٹ ہاؤس کی رپورٹ، خالد کرامت کی زبانی۔ اگست سے اب تک 6 لاکھ سے زیادہ روہنگیا افراد نے بنگلہ دیش کے کیمپس میں پناہ حاصل کی ہے۔ ہم روہنگیا مہاجرین کے لیے بنائے گئے اس کیمپ پہنچے۔ ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں آئے جو رخائن ریاست کے ٹولا ٹولی گاؤں میں قتل عام سے بچ کر یہاں پہنچے۔ ہمیں جو معلومات ملی وہ ایک پرتشدد اور منظم مہم کی ایسی تصویر پیش کرتی ہے جسے نسل کشی کی ٹیکسٹ بک مثال کہا جا سکتا ہے۔ 30 اگست کا دن تھا، صبح کے 8 بجے تھے۔ ہم نے فوجیوں کو شمال سے آتے دیکھا۔ ٹولا ٹولی گاؤں کے کئی رہائشی حصے ہیں جن کے ارد گرد دریا بہہ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے فوجیوں نے دریا پار موجود متعدد گاؤں میں آگ لگائی۔ 30 اگست کی صبح فوجی ٹولا ٹولی پہنچے۔ افراتفری کا عالم تھا۔ گاؤں کے لوگ مشرق کی طرف بھاگے اور دریا کے کنارے پہنچے، مگر یہاں وہ پھنس گئے۔ ہمارے گھر جلانے کے بعد فوجی دریا کے کنارے آئے اور سب کو جمع کیا۔ انہوں نے عورتوں سے ان کے زیور مانگے۔ فوجیوں نے پھر مردوں کو عورتوں سے علیحدہ کیا اور پھر انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ماؤں سے بچے چھیننے شروع کر دیے اور انہیں زمین پر پھینکا اور پھر انہیں رائفل کے دستوں اور بانس کی سوٹیوں سے مارا۔ ان دہشت ناک مناظر کی وجہ سے اب بھی انہیں بھیانک خواب آتے ہیں۔ ہمیں ایک واقعے کے بارے میں بتایا گیا جو ٹولا ٹولی میں قتل عام سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ہوا، اور یہ اراکان روہنگیا سیلویشن آرمی نامی ملیٹنٹ گروپ کے ان حملوں سے پہلے ہوا جس کے نتیجے میں برمی فوج نے سخت رد عمل دکھایا۔ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس رات مقامی بود گاؤں کے ایک اہلکار نے تقریباً 70 پولیس والوں کو بلوایا۔ کچھ دن بعد اسی اہلکار نے دونوں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو جمع کیا اور ان سے ایک طرح کے امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے کہا۔ ٹولا ٹولی کے روہنگیا افراد نے اس دستاویز کو اپنی حفاظت کی یقین دہانی کے طور پر دیکھا۔ اب انہیں لگتا ہے کہ اس اہلکار نے انہیں دھوکہ دیا۔ ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی تقریباً سبھی نے اس مقامی سرکاری اہلکار کا ذکر کیا۔ اس شخص کا نام آنگ کیو سن ہے۔ ہم سے جس نے بھی بات کی ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص خود اس حملے میں شامل تھا، مگر ہمارے نزدیک پھر بھی اس اہلکار کو کچھ سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ ہم BBC سے بات کر رہے ہیں اور اس کال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے گاؤں والوں کو فوج کی آمد کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کے حالات ہوں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خاموش نہ رہتا۔ مگر یہاں لوگ کہتے ہیں آپ روہنگیا آبادی کو گاؤں سے نکالنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے وہ چلے جائیں۔ ایسا میں نہیں کر سکتا، یہ حکومت کی پالیسی ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فیصلہ تو مجھ سے اوپر لوگوں نے کیا۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्मी फौज कई हफ्तों से मुतहर्रिक थी। हमने बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के एक अफसर से बात की जो सरहद के पार फौजी नकलो हरकत मॉनिटर करते हैं। इस अफसर का कहना था कि उन्हें BBC से कैमरे पर बात करने की इजाज़त नहीं, मगर हम उनका हवाला देकर ये कह सकते हैं कि उन्होंने 5 अगस्त से बर्मी फौज को सरहद पर बड़ी तादाद में जमा होते देखा। लोगों के घर जलाने के अलावा उन्होंने उनके पैसे और कीमती चीजें छीनी। इसका मकसद रखाइन रियासत से रोहिंग्या को निकालना था। जो जिंदा बचे उन्हें इंतहाई अजियतनाक तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। पूरी तरह झुलसी हुई मुमताज रात के अंधेरे में बचकर भागी। उनके मुताबिक इनका एक बच्चा जलकर हलाक हुआ। टोला टोली में कत्ले आम से बच जाने वाली एक और औरत ने बताया कि उनके छोटे बच्चे को आग में फेंक दिया गया। दूसरी औरतों के हाथों से उनके बच्चे छीने गए। जब हमें घर के अंदर ले जाया गया तो उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीनने की कोशिश की। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरा बच्चा छीनकर उसे ज़मीन पर पटक कर हलाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे नस्लकुशी करार दिया है। कुछ इसे सिर्फ कत्ले आम कह रहे हैं। हर शाम लोग सरहद पार करके बांग्लादेश में पनाह हासिल करने के लिए आ रहे हैं। नए आने वाले कहते हैं कि उनके गांव अब भी जलाए जा रहे हैं और उन्हें डरा कर घरों से निकाला जा रहा है। गैब्रियल गेटहाउस की रिपोर्ट। तनाज़ात का शिकार हिंदी फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कहा है कि इस फिल्म की नुमाइश से रियासत में नक्स अमन का ख़तरा हो सकता है। राजस्थान के साबिक़ शाही घराने का कहना है कि फिल्म में चित्तौड़ की रानी पद्मावती की गलत छवि पेश की गई है। दिल्ली से सुहेल हलीम। राजपूतों की सरजमीन राजस्थान, यहाँ के राजाओं की बहादुरी के किस्से मशहूर हैं। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत। और मशहूर है जौहर की रिवायत भी, जिसमें राजपूत औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद अपनी जान ले लेती थीं। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। ये कहानियां तो सदियों पुरानी हैं, बस तनाज़ा नया है। 1 दिसंबर को ये पिक्चर रिलीज होती है तो जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा और जनता के द्वारा जो कर्फ्यू लगाया जाएगा उसकी संपूर्ण परिणाम की जिम्मेदारी सरकार की होगी। बहुत से राजपूत मानते हैं कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की अहलिया पद्मावती के हुस्न के किस्से सुनकर ही 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला किया था। लेकिन मुअर्रिखीन के मुताबिक उस दौर की दस्तावेजात में कहीं रानी पद्मावती का जिक्र नहीं है। पद्मावती का किरदार शायर मलिक मोहम्मद जायसी ने 16वीं सदी में तख्लीक दिया था। फिल्म की मुखालफत करने वालों का दावा है कि पद्मावती ने जौहर किया था और फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं होना चाहिए जिससे ये तासुर भी मिले कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती में कोई कुर्बत या मोहब्बत थी। कि हमारी फिल्म में रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ऐसा कोई सीन नहीं है जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए या जज्बातों को तकलीफ दे। फिल्म में पद्मावती का किरदार दीपिका पाडुकोन ने निभाया है। लोग सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया है या गलत दिखाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता ही है और हम चाहेंगे कि लोग फिल्म देखें पहले। फिल्म की मुखालफत करने वालों का कहना है कि किसी को भी तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बस मसला ये है कि इस फिल्म में कुछ हकीकत है और कुछ अफसाना, और आजकल दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने खबरदार किया है कि यमन में कहत और जानलेवा बीमारियों से इस साल 5 साल से कम उम्र के 50,000 बच्चे हलाक हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70 लाख यमनी बाशिंदों को कहत का सामना है। BBC के नामानिगार क्लाइव मायरी फ्रंट लाइन पर वाक़े तेज़ शहर गए, जहाँ से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, जिसके बाज़ मनाजिर तकलीफदेह हो सकते हैं। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं आदिल शाह से।
6 लाख की आबादी पर मुश्तमिल 23 शहर यमन की जंग में होने वाली तबाही की गवाही दे रहा है। ये शहर जंग के शोलों की नज़र हो चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं। सड़कों पर जगह जगह कूड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ की नहर पानी की बजाय इंसानी फुजले के थैलों से भर चुकी है, जिसकी वजह से तेज़ी से हैज़ा फैल रहा है। 23 शहर सऊदी हिमायत याफ्ता सरकारी फ़ौज और मुबैना तौर पर ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के दरमियान जंग में फ्रंट लाइन है। ये शहर शुमाल से जुनूब जाने वाली मरकज़ी शाहराह पर वाक़ है। इस शहर पर कंट्रोल का मतलब है जुनूब में जारी जंग में बरतरी। इस जंग में कोई भी फरीक अहम इलाकों पर कंट्रोल बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सका है। इस जंग में आम लोग फरीक़ैन के दरमियान बुरी तरह फंसे हुए हैं। सऊदी इत्तेहाद 2 साल की मुसलसल बमबारी के बाद भी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सका है। इनकी फ़ौजी मुदाखलत को नाकामी का सामना है और किसी किस्म की कामयाबी दूर तक नज़र नहीं आ रही। यहाँ यमन में शायद चंद ही लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी यादें तबाहकुन जंग से वाबस्ता ना हों। अदन में बरतानवी राज, फिर कई बरसों पर मुहीत कम्युनिज़म, खाना जंगी और अब खित्ते की ताकतों की प्रॉक्सी वॉर के नतीजे में हर किसी की ज़ुबान पर सऊदी अरब का नाम है। ये फ़िज़ाई बमबारी में तबाह होने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर के मनाजिर हैं। हज़ारों जानों के ज़ियाँ और तबाही के बाद मौजूदा दौर की ज़्यादातर जंगों की तरह इस जंग का ख़ात्मा भी शायद सियासी हल पर ही होगा। इस वार्ड में कहत ज़दा ये बच्चे ताकत और असर व रसूख के लिए जारी इस जंग के डसे हुए हैं। यमन तेहरान से रियाज तक इस तबाहकुन खेल के ताकतवर खिलाड़ियों के बीच फंस कर रह गया है। जंग में धकेले हुए ये बच्चे शायद अमन के बारे में कभी जान ही ना पाएं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफ़गानिस्तान में अफ़यून की पैदावार और बच्चों में हेरोइन के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल अफ़गानिस्तान में अफ़यून की पैदावार में तकरीबन 90% इजाफा हुआ है और जितने रकबे पर अफ़यून काश्त की जा रही है उस रकबे में भी 40% इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के बकौल ख़ुद अफ़गानिस्तान में दाखिली तौर पर हेरोइन की खपत में इजाफा हुआ है और बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। सिकंदर किरमानी की रिपोर्ट, सलीम काजी की ज़बानी। देखने में तो ये बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे हीरोइन के आदी हो चुके थे। हम इस रिहेबिलिटेशन सेंटर की दरख्वास्त पर इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखा रहे। इनमें से अक्सरियत की माएँ भी यहाँ नशे से निजात के लिए इलाज करवा रही हैं। इस 9 साला लड़के ने 3 माह पहले हीरोइन पीना शुरू कर दी थी। हम लोग अपनी खाला के साथ रहते थे और वो नशे की आदी थी। एक दिन मेरे दांत में दर्द हुआ तो उन्होंने कहा कि ये सिगरेट पियो, ठीक हो जाओगे। उसके बाद मुझे इसकी आदत पड़ गई। इसी तरह मेरे माँ बाप को भी हेरोइन की आदत पड़ गई। पहले तो मुझे हेरोइन छोड़ने में बहुत मुश्किल हुई। मुझे दर्द होता था और मैं बहुत रोता था। यहाँ आने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कुछ को बार बार आना पड़ता है। जब इलाज के बाद ये वापस घर जाते हैं तो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से नशा शुरू किया था। ये दोबारा आदी हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो 3-4 मरतबा यहाँ दाखिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान में नशे के आदी बच्चों की तादाद 1 लाख के करीब है, जबकि मुल्क भर में इस किस्म के मरकज़ सिर्फ 10 हैं। आलमी सतह पर फ़रोख्त होने वाली हीरोइन का एक बड़ा हिस्सा इसी अफ़यून से बनता है जो अफ़गानिस्तान में काश्त की जाती है। कुछ गरीब किसानों के लिए अपने ख़ानदान को पालने का आसान तरीन हल अफ़यून की काश्त है और तालिबान का बड़ा ज़रिया मुआश भी यही है। हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अफ़यून के ख़िलाफ़ भी ऐसी ही जंग होनी चाहिए जैसी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। ये असल में एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अफ़यून में इजाफे का मतलब यही है कि तालिबान के पास जंग के लिए पैसा आ रहा है। काबुल में एक पुल के नीचे कचरे से अटी हुई इस जगह पर हर रोज़ हीरोइन के हज़ारों आदी अफराद जमा होते हैं और अगर इन लोगों का इलाज नहीं किया जाता तो बहुत जल्द वो भी यहाँ नज़र आएंगे जो अभी कम उम्र हैं और ख़दशा है कि नशा और मवाद इस मुसीबत ज़दा मुल्क की अज़ियतों में इजाफा करता रहेगा।
اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے BBC شیم سیریز کے دوران بننے والی خصوصی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ امریکی ریاست نیو جرسی میں روی بھلا وہ پہلے سکھ ہیں جنہیں ان کے شہر والوں نے چند ہی دن پہلے اپنا میئر منتخب کیا ہے۔ وہ نیو جرسی کے شہر ہوبوکن میں گزشتہ 17 سال سے مقیم ہیں۔ انہیں میئر بننے تک کن مراحل سے گزرنا پڑا اور بدلتے سیاسی حالات میں لوگوں کی نظروں میں روی بھلا کی اپنی شناخت کیسے بدلی ہے، سنیے ان کی کہانی انہی کی زبانی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے پوری زندگی نسل پرستی کا سامنا رہا ہے۔ مجھے اسکول کے کلاس روم میں بلی کیا گیا، 70 کی دہائی میں خمینی کہا گیا، 80 اور 90 میں صدام حسین بن گیا، اس کے بعد مجھے بن لادن کہا جانے لگا۔ تو سکھوں کو ہمیشہ غلط سمجھا گیا، سکھوں کی پگڑی جیسے کوئی خلائی چیز ہو۔ میرے لیے یہ سب تکلیف دہ تھا، اور مجھ سے زیادہ میری بیٹی کے لیے جسے 10 سال کی عمر میں پہلی بار نسل پرستی سے نمٹنا پڑا۔ اپنی بیٹی کے لیے میں چاہتا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں ایک عورت کو دیکھے۔ بہت زبردست اور تاریخی بات ہوتی، لیکن بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب ہماری جمہوریت میں ایک نیا چہرہ ہے، اور وفاقی حکومت وائٹ ہاؤس کے ذریعے امریکہ کی بہت سی اقدار کو متنازع بنا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ اگر امریکہ پہلے افریقی نژاد صدر کے لیے تیار ہے تو پھر ایک سکھ میئر بھی بن سکتا ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ تم آئرش نہیں ہو، اطالوی یا پورٹو ریکن نہیں ہو، تمہیں سکھوں کے کتنے ووٹ ملیں گے؟ میں نے کہا میری بیوی ہے، میرا بھائی اور اس کی بیوی ہے۔ پوچھا گیا کہ کتنے انڈین مجھے ووٹ دیں گے؟ میں نے کہا چند ہیں، بہت زیادہ نہیں۔ تو پھر تمہارے لیے ووٹ کون کرے گا؟ مجھ سے پوچھا گیا۔ روی بھلا نیو جرسی میں ہوبوکن کے میئر۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔